A very good morning to all students. Once again, we are coming to discuss a important question from the different chapter of the part A of the class 12 accountancy. As you know very well, in the last few videos, we already discussed the important board questions related to each and every chapter of the class 12 accountancy, whether it is a part A or part B. So in this video, let's we discuss and revise each and every important question from every chapter of the class 12 accountancy. So before starting and telling about the important question related to the chapters of the part A of class 12 accountancy, let's we firstly we discuss how many chapters are covered under the part A. Part A divided into the two volume 1 and volume 2. In the volume 1, firstly we are talking about the financial statement of not for profit organization, and thereafter we are talking about the accounting for partnership firm. In this session, in this part, firstly we discuss the fundamental concept of the accounting of partnership firm. Thereafter we are talking about the accounting of partnership firm, that is a change in PSR. Third will be a admission of a new partner. Fourth will be a retirement and death of a partner, and the last will be a dissolution of partnership firm. And in the volume 2 of the part A, we are talking about the accounting for share capital as well as the accounting for debenture. And in this volume 2, we are talking about the accounting for companies. कंपनी किस तरह से अपना अकाउंट मेंटेन करती है, उसमें हम लोग दो टॉपिक को डिस्कस करना है. फर्स्टली इशू ऑफ शेयर एंड सेकेंडली इशू ऑफ डिबेंचर. And in the part B, you know very well, we are talking about the each and every important concept related to the financial statement analysis. So in this video, firstly we are talking about the some of the important questions related to the part A from the different chapters. Okay, so the first question is, and I requested to each and every student, please किसी भी रिवीजन पार्ट में जाने से पहले आप उस पूरे चैप्टर के जो मेन पॉइंट्स हैं, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, उस पर डिस्कस ज़रूर कर लीजिए. क्योंकि अगर आप उन सारे पॉइंट्स पे अगर डिस्कशन नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये आपके लिए हार्मफुल हो सकता है कि इफ़ यू डू नॉट हैव अ सफिशिएंट नॉलेज अबाउट दीज चैप्टर, सो आप चीज़ों को टाइमली स्टार्ट नहीं कर पाएंगे, टाइमली वर्क नहीं कर पाएंगे. सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज, A, B are partnered in the ratio of 4:3, and they decided to share future profit in the ratio of 3:4. This is an old ratio, and old ratio will be converted to the new ratio, that is in 3:4. It will be a new ratio. Sacrificing and gaining ratio will be, what is sacrificing and new gaining ratio? So formula of gaining ratio equals to new ratio minus old ratio. So अगर हम A और B की बात करें, so A's new ratio is 3:7, B's new ratio is 4:7, and it will be deducted from the old ratio is 4:7 and 3:7. So B will be gained by 1:7, whereas the A will be sacrificed by 1:7. A क्या करेगा? Sacrifice, and B क्या करेगा? Gain. Now the question number 2 will be a goodwill of the firm of P and Q is valued at 45,000. Goodwill of the firm, it will be a 45,000. It is appearing in the books at 27,000, and goodwill appear in the book 27,000. It is admitted for 1/5 share, यानी कि
it is very clear. R is admitted. Sorry, not it is. R is admitted for 1/5 share. What amount he is supposed to bring for his goodwill? So you know very well, जब भी कोई नया पार्टनर आता है तो कैपिटल के साथ क्या लेकर आता है? गुडविल भी लेकर आता है. तो अगर हम उस बिहाफ पे बात करें तो यू कैन सी दैट, आपको ये दिख रहा होगा, समझ में आ रहा होगा कि वी आर टॉकिंग अबाउट दी कि आर आ रहा है 1/5 के लिए, और उसमें पी और क्यू जो हैं पहले से पार्टनर हैं 1:1 के लिए. सो अगर हम इसकी जर्नल एंट्री की बात करें कि जर्नल एंट्री क्या पास होगी, सो पहले अगर हम लोग बात करते हैं, सो फर्स्ट जर्नल एंट्री, गुडविल ऑलरेडी अपीयर इन द बुक्स. उसको हम लोग क्या करते हैं, इफ in case of the reconstitution of the partnership firm, is there any kind of the goodwill already appear in the books, it will be distributed by old partner in their old ratio. Old partners क्या कर लेते हैं, old ratio में उसको divide कर लेते हैं. So the journal entry will be a goodwill already appear in the books, the entry will be a P's capital account debit, Q's capital account debit to goodwill, and goodwill will be a 27,000. और 27,000 को हाफ ऑफ पी एंड क्यू क्या कर लेंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे. सो 13,500 पी एंड 13,500 फॉर क्यू. दूसरी बात है कि गुडविल ऑफ द फर्म कितना है, 45,000. तो आर भी गुडविल लेकर आएगा, तो आर एट द टाइम ऑफ द एडमिशन वो गुडविल कितना लाएगा, 45,000 का 1/5, दैट इज 9,000. और ये 9,000 जो गुडविल है, इट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड बाय पी एंड क्यू, क्योंकि इस क्वेश्चन में ऐसा नहीं लिखा है कि पी आ रहा है, आर आ रहा है तो गुडविल और कैपिटल आ रहा है, तो हम ये मान के चलेंगे उसने गुडविल नहीं लाया. उसकी एंट्री क्या होगी, उसकी एंट्री होगी आर्स करंट अकाउंट डेबिट टू पीस कैपिटल टू क्यूज कैपिटल. उसकी गुडविल कितनी थी, 9,000. और किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे पी एंड क्यू, इन देयर सैक्रिफाइसिंग रेशियो, एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो विल बी 1:1, क्योंकि सिंपल केस में ओल्ड रेशियो ही आपका क्या होता है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो होता है. सो 9,000 विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड बाय पी एंड क्यू इन देयर सैक्रिफाइसिंग रेशियो, दैट इज 4,500 and 4,500. Okay, so let's we move to the next question. The next question is related to the amount shown under the income and expenditure account related to the subscription. Okay, so the next question, और इस क्वेश्चन के लिए हमें थोड़ी सी स्पेस की जरूरत पड़ेगी. And question is very easy. From the following information given below, calculate the amount of subscription to be credited to the income and expenditure account. And a lots of the information is given. So, you know very well, पहले हम लोग income and expenditure account बना लेते हैं. Format आपको पता ही है, एक साइड इनकम होता है, दूसरी साइड क्या होता है, एक्सपेंडिचर, और इधर हम लोग क्या दिखाते हैं, बाय सब्सक्रिप्शन. आप चाहें तो सारी वर्किंग आप इनकम साइड में ही कर सकते हैं, बट अगर आप चाहें तो उसकी वर्किंग नोट भी बना सकते हैं. सो हम लोग वर्किंग नोट बनाते हैं. ठीक है, वर्किंग नोट क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन में, वर्किंग नोट में सबसे पहले हम लोग क्या लेते हैं, सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर. सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर. सब्सक्रिप्शन कितना रिसीव हुआ ड्यूरिंग द ईयर, 2 लाख. और फॉर्मेट आपको याद ही होगा, मैंने आपको बताया हुआ है कि पूरा फॉर्मेट आपको लर्न होना चाहिए. क्या था, आउटस्टैंडिंग एट एंड प्लस आउटस्टैंडिंग एट बिगिनिंग माइनस एडवांस एट एंड क्या होगा, माइनस होगा, और एडवांस एट बिगिनिंग क्या होगा, प्लस होगा. और वैल्यूज पे देख लो उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग. एडवांस सब्सक्रिप्शन बिगिनिंग का है 37,500 और एंड का है 25,000. और उसी तरह से
एरियर है बिगनिंग का 65,000, एंड का है 15,000, और उसमें लिखा है सब्सक्रिप्शन ऑफ 5,000 आर स्टिल इन एरियर फॉर 89, अभी भी एरियर है। तो बिगनिंग में एरियर कितना था 65,000 और अभी भी एरियर कितना है 5,000, तो ये कितना हो गया 60,000। और आउटस्टैंडिंग एट एंड कितना है, एंड में आपका आउटस्टैंडिंग कितना है 15,000 और अभी भी स्टिल एरियर कितना है उसमें 5,000, ये हो जाएगा आपका 10,000। क्योंकि अभी स्टिल इन एरियर मतलब पिछले साल का अभी पैसा मिला नहीं है, तो उसका इफेक्ट बिगनिंग में भी पड़ेगा एंड में पड़ेगा। बिगनिंग में से भी वो पैसा माइनस होगा क्योंकि वो मिला ही नहीं है, और एंड में से माइनस होगा क्योंकि एंड में ऑलरेडी हमने जो निकाला होगा वो आउटस्टैंडिंग एंड क्या होगा, तो ये सबको इंक्लूड करके निकाला होगा। सो उसको हम सॉल्व करेंगे, सॉल्व करके वैल्यू आ रही है आपकी 1,62,500, और इस 1,62,500 को यहाँ नोट डाउन कर, ठीक है। और जब आप बैलेंस शीट बनाओगे इस केस में, तो जब आप बैलेंस शीट बनाओगे ओपनिंग बैलेंस शीट यानी बिगिनिंग वाली, तो आपको तो पता ही है आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन कहाँ दिखाते हैं एसेट साइड में, और एडवांस सब्सक्रिप्शन कहाँ दिखाते हैं लायबिलिटी साइड में। तो एडवांस सब्सक्रिप्शन कितना है बिगिनिंग का 37,500, 37,500, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन कितना है 15,000, पूरा दिखाते हैं। और जब आप बैलेंस शीट बनाओगे कौन सी क्लोजिंग वाली एंड वाली, सो आप क्या करोगे एडवांस सब्सक्रिप्शन एंड का कितना है, एडवांस सब्सक्रिप्शन है 25,000 और आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन कितना है आपका 15,000, एंड का 15, बिगिनिंग आउटस्टैंडिंग कितना था 60,000, सॉरी फॉर दैट, ठीक है। तो उसको आप रफली अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लो, ठीक है। उसके बाद हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नाउ वी आर मूविंग टू द some of the important practical questions related to the issue of share, and this question includes the entries related to the forfeiture, reissue, as well as the preparation of the balance sheet of the companies. So the first question which are related to the, that is board questions related to issue of share. Okay, so the first question is Ritwik Limited forfeited 250 share of 100 each issued at 10% premium for non-payment of allotment money of 30 per share including premium, and the first call of rupees 30 per share. The final call of rupees 20 was not yet called. 100 of these which share were reissued at 80 paid up and 90 per share. Past necessary entries of the forfeiture and the reissue of the share. So in this situation, first of all, we pass the entries, that is an share capital account debit, security premium reserve account debit to, this is DR, to share forfeiture to calls in area. Okay, so the first, you can see that the forfeited share is 250 of rupees 100 each, so 250 multiplied by 100, but final call was not made, so that's why it will be 80, and premium will be 250 multiplied by 20, और उस पे आपको कितना नहीं मिला 30 plus 30 आपको नहीं मिला, 60 रुपीज आपको नहीं मिले 250 शेयर पे। सो अगर आप मल्टीप्लाई करो तो यू कैन सी दैट this is an 20,000 and it will be a 5,000 and this will be a
15,000, so remaining value will be of 10,000 because प्रीमियम आपको नहीं मिला। एंड आफ्टर दैट आपने क्या किया, शेयर को रीइशू कर दिया। सो रीइशू की एंट्री क्या होती है, किस पे इशू किया, 80 पेड अप है, ठीक है, 80 पेड अप है, 90 पर शेयर। सो उसकी एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। 100 शेयर आपने 80 का मान के रीइशू किया, यानी 8,000 का, बट कितने पे रीइशू किया, 90 पे। सो 9,000 आपको मिला। सो 1,000 आपका क्या हो गया, टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। उसके बाद नंबर थर्ड, यू नो वेरी वेल, आफ्टर द रीइशू ऑफ द फॉरफिटेड शेयर हम क्या करते हैं, बैलेंस वैल्यू विल बी ट्रांसफर टू द कैपिटल रिजर्व। कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करते हैं। सो कैपिटल रिजर्व में कैसे ट्रांसफर होता है, टोटल फॉरफिटेड अमाउंट डिवाइड बाय टोटल फॉरफिटेड शेयर into reissued share minus amount used at the time of reissue. So total forfeited amount कितनी है आपकी, 10,000, total forfeited share कितना है 250, reissued कितना है 100 और amount यूटिलाइज कुछ भी नहीं। So कितना हो जाएगा ये आपका, ये वैल्यू हो जाएगी आपकी वैल्यू हो जाएगी आपकी 005, that is in 4,000. Now we are moving to the next question, and this question is related to the preparation of the balance sheet, and this question is asked in the year 2020 sample paper. ठीक है, ये क्वेश्चन जो है वो 2020 के सीबीएसई के सैंपल पेपर में पूछा गया है और कहा गया है वी हैव टू प्रिपेयर दी बैलेंस शीट, एंड द क्वेश्चन इज एक्स लिमिटेड ऑफर्ड 50,000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹100 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 20, पेबल एज फॉलोज, एप्लीकेशन ₹50, अलॉटमेंट ₹40 इंक्लूडिंग प्रीमियम, बैलेंस ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, the bank account of the company has received 35 lakh on account of the application money, X Limited decided to allot share to all applicant on the pro rata basis, the balance in call scenario at the time of the allotment and the first and final call amounted to 1 lakh and 1,50,000 respectively. You have, and these share were reissued, forfeited and reissued at ₹90 per share as fully paid up. तो इस क्वेश्चन में बैलेंस शीट बनाने से पहले यू नो वेरी वेल कि हम पहले बैलेंस शीट का एक फॉर्मेट बनाते हैं। व्हाट इज द फॉर्मेट ऑफ द बैलेंस शीट, दिस इज द फॉर्मेट ऑफ द बैलेंस शीट, पर्टिकुलर्स, नोट नंबर, अमाउंट। सबसे पहला क्या होता है, इक्विटी एंड लायबिलिटी, उसके बाद शेयर होल्डर फंड, उसमें शेयर कैपिटल, इसका हम क्या बनाएंगे, नोट्स टू अकाउंट। ठीक, नोट्स टू अकाउंट बनाते वक्त मैंने आपको बताया था कंपनी पहले एथराइज देखती है, इशूड देखती है, सब्सक्राइब एंड कॉल्ड अप। तो नोट्स टू अकाउंट अगर आप बनाओगे तो सबसे पहले अगर मैं शेयर कैपिटल की बात करूं तो उसमें 3 चीजें होनी बहुत जरूरी है। तो 3 इंपॉर्टेंट थिंग, फर्स्ट शेयर कैपिटल, इसको कैसे लिखते हैं, शेयर कैपिटल लिखने का तरीका क्या होता है, मैंने आपको क्लास में बताया हुआ है कि सब्सक्राइब शेयर, उसमें प्लस करते हैं, माइनस करते हैं फॉरफिटेड शेयर, प्लस करते हैं रीइश्यूड शेयर, और उस वैल्यू को हम लोग क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं पेड अप वैल्यू से। ठीक है, तो जो शेयर कैपिटल हम लोग फाइंड आउट करते हैं उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं पेड अप, सॉरी कॉल्ड अप। उसके बाद सेकंड स्टेप हमारा क्या था, माइनस करते हैं इसमें से कॉल्स इन एरियर,
कॉस्ट सिनेरियो की क्या डेफिनेशन थी एट द टाइम ऑफ द प्रिपरेशन ऑफ द बैलेंस शीट? कॉस्ट सिनेरियो मतलब एरियर अमाउंट ऑफ सच शेयर ऑन विच एरियर अमाउंट ऑन of those share which are not reissued, which are not forfeited. जिस शेयर को फॉरफिट नहीं किया गया है उसके शेयर पे अगर कोई एरियर है तो उसको हम लोग क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। नेक्स्ट है आपका प्लस शेयर फॉरफीचर। इसमें हम लोग क्या करते हैं, फॉरफीचर अमाउंट ऑफ दो शेयर विच आर नॉट इशूड, वो शेयर जो रीशूड नहीं हुआ है, रीशूड नहीं हुआ है उसके फॉरफीचर के पैसे को हम लोग क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। इस क्वेश्चन में यू कैन सी दैट कि कंपनी के एरियर कितना हुआ, अलॉटमेंट पे कितना एरियर हुआ, क्योंकि यहां पे हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा अलॉटमेंट पे कितना एरियर हुआ है। अगर हम देखें तो उस क्वेश्चन में अलॉटमेंट पे एरियर जो हुआ है, एरियर और अलॉटमेंट वो हुआ 1 लाख और अलॉटमेंट बनी कितने से, 50। अलॉटमेंट बनी 40। सो कितने शेयर होल्डर ने पैसा नहीं दिया, 2500 शेयर्स पे अलॉटमेंट का पैसा नहीं मिला। कॉल्स की बात करें अगर हम लोग तो उस पर 1,50,000 शेयर पे पैसा नहीं मिला, 1,50,000 शेयर पे पैसा नहीं मिला, 1,50,000 रुपए नहीं मिला। और फर्स्ट और फाइनल कॉल कितने की थी, आपकी बैलेंस थी। बैलेंस मतलब कितना बच गया आपका, 30 रुपीज, सो 5,000 शेयर। इसका मतलब अगर हम लोग बात करें 5,000 शेयर पे अगर हम लोग बात करते हैं तो कंपनी कितना शेयर प्रॉफिट करेगी, 5,000 कि 2,500? कंपनी इस क्वेश्चन में कोई इंफॉर्मेशन नहीं गिवन है, इसलिए कंपनी टोटल 5,000 शेयर प्रॉफिट करेगी और उतने ही शेयर कंपनी को रीइश्यू भी करना है। तो अगर हम नोट्स टू अकाउंट बना रहे हैं तो नोट्स टू अकाउंट में अब इस चीज को अगर हम यहां शिफ्ट करते हैं, यहां अगर हम शो कर रहे हैं इस तरह से देखोगे तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखते हैं, शेयर कैपिटल। कैसे लिखेंगे, सब्सक्राइब शेयर माइनस प्रॉफिटेड प्लस रीइश्यू। सब्सक्राइब कितना हुआ है, कंपनी ने कितना किया है, टोटल शेयर सब्सक्राइब करनी है 50,000। सो 50,000, प्रॉफिट कितना हुआ 5,000, रीइश्यूड कितना हुआ 5,000, तो पूरा कितना हो गया 50,000। और उसकी किस वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे, कॉल्ड अप कितने से, 100 रुपीज से। उसमें माइनस करते हैं एरियर। कोई ऐसा शेयर है जिसे हमने फॉरफिट नहीं किया है, हमने तो सारे शेयर को फॉरफिट कर लिया है। और क्या ऐसा कोई शेयर है जिसको हमने रीइश्यू नहीं किया है, नहीं सर, हमने सारे शेयर को क्या कर दिया है, रीइश्यूड कर दिया है। तो यहां आपका शेयर कैपिटल का आंसर कितना आएगा, 50 है। ना एरियर है ना फॉरफिचर है, सो द आंसर विल बी 50 लाख। इस चीजों को आप अपनी कॉपीज में नोट कर लो, ओके। लेट्स वी मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन which are related to the board questions of the chapter number 1, that is an NPO. Okay, it is very clear in this question you have to find out the consumption of the stationery. Okay, so आपको ये find out करना है, calculation of amount of stationery consumed. आपको स्टेशनरी कंज्यूम्ड अमाउंट फाइंड आउट करनी है। एंड इस क्वेश्चन में यू कैन सी दैट द ओपनिंग स्टॉक ऑफ द स्टेशनरी एंड क्लोजिंग स्टॉक ऑफ द स्टेशनरी इज गिवन, ड्यू इज गिवन, एंड अमाउंट पेड फॉर द स्टेशनरी इज आल्सो गिवन।
परचेज इज नॉट गिवन इन दिस क्वेश्चन एंड सो हमें आपको पता है हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले पेमेंट कितना किया हमने स्टेशनरी के लिए, पेमेंट फॉर स्टेशनरी हमने स्टेशनरी के लिए पे किया 1,36,000, उसमें हम लोग ऐड कर देंगे ओपनिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी एंड लेस करेंगे क्लोजिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी। उसी तरह ड्यू फॉर है तो बिगनिंग का क्या करेंगे माइनस और एंड का क्या करेंगे प्लस, ओपनिंग ड्यू माइनस एंड क्लोजिंग ड्यू क्या करेंगे प्लस। सो ओपनिंग स्टॉक इज 15,000, क्लोजिंग स्टॉक इज 16,800, opening due for stationery will be 18,000 and closing will be 25,200. so ये दोनों वैल्यू माइनस होगी, जो ये आंसर आएगा it will be shown in the amount debited to income and expenditure account and the answer will be 141,400. ये क्वेश्चन ऑलरेडी आपके सीबीएसई के 2019 के एग्जामिनेशन में आ चुका है, सो प्लीज नोट डाउन। ओके, लेट्स वी डिस्कस द फ्यू ऑफ द इंपॉर्टेंट थ्योरेटिकल क्वेश्चन एंड द फर्स्ट थ्योरेटिकल क्वेश्चन इज व्हेन रियलाइजेशन अकाउंट इज प्रिपेयर्ड। अगर आपसे कोई पूछे एज अ शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन to tell me when realization expense is prepared, हम realization expense क्यों बनाते हैं, realization account क्यों बनाते हैं, तो you know very well realization account is prepared at the time of dissolution of partnership firm। अगर आपसे कोई पूछे कि when we prepared the revaluation account, revaluation account is prepared at the time of reconstitution of the partnership firm, reconstitution of partnership firm। next, number third question will be a what is mean by minimum subscription, minimum subscription क्या होता है। So minimum subscription will be it means the minimum amount of that must be subscribed by the public according to the SEBI guideline. It must be 90% of entire issue, 90% of entire issue must be subscribed within a stipulated time. And number 4, what will be the journal entry when debenture are issued at collateral security? क्या एंट्री होती है जब डिबेंचर इशू होता है एज कोलेटरल सिक्योरिटी? सो द जर्नल एंट्री विल बी, पहले होता है बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन और दूसरी एंट्री क्या होती है डिबेंचर सस्पेंस account debit 2% debenture, the two entries. Next will be how the share forfeiture account is closed. share forfeiture account कैसे closed होता है? So you know very well ये account कब खुलता है? At the time of forfeiture of the share। लेकिन ये अकाउंट कब क्लोज किया जाता है? जब हम शेयर को रीइशू कर रहे हैं, यानी आफ्टर द रीइशू ऑफ द शेयर द बैलेंस ऑफ द शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट विल बी ट्रांसफर टू द कैपिटल रिजर्व। सो शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट कब क्लोज होता है? जब उससे रिलेटेड शेयर्स रीइशू हो जाए। और कैसे क्लोज होता है? विद द हेल्प ऑफ कैपिटल रिजर्व अकाउंट। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टेक्निकल क्वेश्चंस हैं, तो उसको आप लोग रिवाइज कर लेना। ओके,
So in today's video, we discuss a lots of the theoretical as well as the numerical question related to the part A of class 12 accountancy. आज के लिए इतना ही. Thank you, thanks a lot and take care.